بی جے پی لیڈر نپر شرما کے خلاف کورٹ کا فیصلہ، حالات کو بگاڑنے اور غیر شائستہ زبان کا استعمال کرنے پر ٹیلی ویژن چینل میں جا کر عوام سے مانگے معافی۔ پی ٹی پی صدر محبوبہ مفتی کا ٹویٹ، عدالت عالیہ کے فیصلے کا خیر مقدم، لیکن دلی پولیس کے خلاف کارروائی کب ہوگی؟ نیشنل کانفرنس کے نوجوان ترجمان عمران نبی ڈار نے بھی کہا، فیصلہ اپنی جگہ، لیکن جو حالات خراب ہوئے اس کا ذمہ دار کون؟ امرناتھ یاترا دوسرے روز بھی یاتریوں کا سفر اور روانگی کا سلسلہ رہا جاری۔ ہیلی پیڈ ہمہامہ سے لے کر ننون بیس کیمپ بالتل سے روانگی کا سلسلہ جاری۔ قومی شاہراہ پر سبزی، اشیائی خوردنی اور دیگر چیزیں ضائع ہوتی نظر آ رہی ہے۔ سیکیورٹی مداخلت کی وجہ سے کافی نقصان ہوا۔ پولیس اور ڈپٹی کمشنر کے کوارڈینیشن سے مزید نقصان کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹروں کے عالمی دن کے موقع پر تقریبات کا سلسلہ وادی کے متعدد جگہوں میں رہا جاری۔ محکمہ ہیلتھ کا اسی روز حکم نامہ جاری۔ غیر حاضر مزید 16 ڈاکٹروں کو وجہ بتاؤ نوٹس ملے۔ حاضر ہوئے تو ٹھیک، ورنہ نوکری سے ہو جائیں گے فارغ۔ پرنسپل میڈیکل کالج، سی ڈی ہاسپٹل، ایس ایم ایچ ایس اور دیگر جگہوں پر تقریبات کا سلسلہ فوج اور پولیس انتظامیہ کی طرف سے رہا جاری۔ اور شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ میں آب نے آج اپنا غصہ دکھایا۔ ولر جھیل میں 3 نوجوان ڈوب گئے۔ ایک ازجان لہروال پورہ گاؤں میں مظفر احمد سمیت 3 لڑکے اپنے مویشیوں کو لے کر ولر جھیل کے کنارے ایک ندی کے اوپر سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، اچانک ڈوب گئے۔ 2 کو بچایا گیا، مظفر چل بسا۔ گراؤنڈ رپورٹ کے سبھی ناظرین تک سید تجم الاسلام کا سری نگر اسٹوڈیو سے سلام پہنچے۔ جموں کشمیر، ملک بھر اور دنیا بھر کے چند اہم واقعات اور موضوعات کے ساتھ ٹیلی ویژن نشریات کے ساتھ ساتھ انسٹا، یوٹیوب، ٹویٹر اور فیس بک کے ذریعے سے اس نشریات کو عالمی سطح پر اس وقت سری نگر اسٹوڈیو سے آپ براہ راست ایک ساتھ دیکھ رہے ناظرین، شروعات کرتے ہیں بڑی خبر کے ساتھ۔ پیغمبر آخر الزماں محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مبینہ طور پر ناشائستہ الفاظ کا استعمال بھارتیہ جنتا پارٹی کی پروکتا یا ترجمان نپر شرما نے کیا تھا۔ اس کے بعد دلی سے لے کر کیرالہ اور بنگلورو سے لے کر شہر سری نگر کے متعدد علاقوں میں احتجاج بھی ہوئے، مظاہرے بھی ہوئے اور نپر شرما کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ اس کے بعد نپر شرما کی سیکیورٹی بھی بڑھا دی گئی اور اس کے بعد معاملہ یہیں پہ رکا نہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے تنظیمی امورات کو دیکھتے ہوئے نپر شرما کو بحیثیت ترجمان اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈر کے پارٹی سے فی الحال باہر کر دیا۔ تمام مکتب ہائی فکر، تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ، اسد الدین اویسی سے لے کر محبوبہ مفتی تک اور باقی بزرگ لیڈروں نے بھی مشورہ دیا کہ ان کے خلاف قانونی شکنجہ سخت کر دیا جائے، کیونکہ ایک مذہب کو دوسرے مذہب کے لیڈر کے بارے میں اس طرح سے بیان بازی کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی مذہب ہو، ایک دوسرے کے خلاف کسی بھی قیمت پر آپ اس زبان کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ عدالت عالیہ نے سنایا فیصلہ اور نپر شرما کے لیے فیصلہ صادر کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے جب ججمنٹ سنائی تو انہوں نے فیصلہ دیا کہ نپر شرما کو حالات بگاڑنے، کسی مذہب کے خلاف غلط اور ناشائستہ زبان کا استعمال کرنے اور اس طبقے کے لوگوں کو ان کے جذبات کو مجروح کرنے اور اس کے بعد جو حالات بگڑے، جو احتجاج ہوئے، اس ساری صورتحال کے لیے نپر شرما کو فوری طور پر ٹیلی ویژن چینلوں میں جا کر عوام سے معافی مانگنی ہوگی، خصوصاً اس طبقے سے جو عالم اسلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پیغمبر آخر الزماں محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والی بھارتیہ جنتا پارٹی کی لیڈر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ناشائستہ الفاظ کا استعمال کیا۔ ادھر پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے کچھ دیر پہلے ٹویٹ جاری کیا۔ پی ڈی پی سپریمو لکھتی ہیں، میں اپریشیٹ کرتی ہوں سپریم کورٹ کی آبزرویشنز کا، لیکن جو کمنٹس، جو حالات
नुपुर शर्मा की वजह से पैदा हुए और उसके बाद जो उन अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए थी, ये डिफरेंट और अलग अलग यार्ड स्टिक क्यों? क्या दिल्ली पुलिस के खिलाफ नुपुर शर्मा के इस एपिसोड के बाद कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती थी? महबूबा मुफ्ती ने कुछ देर पहले ट्वीट करते हुए कहा, जो नुपुर शर्मा ने बयान दिया काबिल मजम्मत है और इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हमें बेसब्री से इंतजार था और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से फैसला सुनाया हम इसका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। लेकिन जब आप इस किस्म के चार्जेस के बाद दिल्ली पुलिस के यार्ड स्टिक्स को देखते हैं तो हमें शक होता है कि कई मुल्क में अलग अलग यार्ड स्टिक तो नहीं चलते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नौजवान तर्जमान इमरान नबी डार ने गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के साथ हमारे नुमाइंदे के साथ बातचीत करते हुए अपनी पार्टी का मौक़िफ़ नुपुर शर्मा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कुछ यूँ जाहिर किया। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जस्टिस साहब ने जो आज रिप्रिमांड किया है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही खुशाइंद है और हम वेलकम करते हैं, क्योंकि जो नुपुर शर्मा ने किया वो नाकाबिल कबूल है, वो बर्दाश्त के लायक नहीं है। वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो डेरोगेटरी वर्ड्स इस्तेमाल किए उनकी शान के खिलाफ उन्होंने जो बात की, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात पूरी तरीके से जस्टिफाई की कि जो एक्शन होना चाहिए था वो एक्शन हो नहीं रहा है। तो हम इस स्टेटमेंट को वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि और अब नाज़रीन, सालाना अमरनाथ यात्रा के हवाले से आज के इंतजामात और यात्रियों का सिलसिला जारी रहा। श्रीनगर के एयरपोर्ट इलाके से, हमहमा इलाके से, हेलीपैड से भी मुसाफिरों का सिलसिला जारी रहा और श्री अमरनाथ यात्रा 2022 के लिए बडगाम के हमहमा इलाके से चॉपर सर्विस का सिलसिला आज भी जारी रहा। बीते 2 दिनों में दर्जनों ऐसे अफराद जिन्होंने इस यात्रा में शिवलिंगम के दर्शन के लिए एयर सफ़र का फैसला लिया था। बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जिन्हें सांस फूलती है, जिन्हें सांस या कोई दूसरी धमे की बीमारी हो या उम्र का तकाजा हो, ऐसे मरीज़ों का या ऐसे अफराद का जो चॉपर सर्विस के ज़रिए वहाँ जाना चाहते हैं, उनके लिए आज भी तस्वीरें जो है आपके सामने है। श्रीनगर बडगाम के बीच में बड़ा खूबसूरत इलाका हमहमा, जहाँ पर हेलीपैड अब की बार तैयार किया गया था। लेकिन नुनवन बेस कैंप और बालतल से भी तस्वीरें हैं और तस्वीर में आज भी अमरनाथ यात्रा का सफ़र जो है वो शदोमत से जारी था और अमरनाथ यात्रा में करीबन 2 साल के तवील इंतज़ार के बाद यात्रियों को शिवलिंगम के दर्शन, पवित्र गुफा के दर्शन कराने के लिए फोर्सेस के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और इजाफी नीम फौजी दस्तों की तैनाती के साथ साथ रोड ओपनिंग पार्टीज और मार्केट में कोविड-19 का बड़ा प्रोटोकॉल जो है वो अपनाना होगा। इस तरह से आज भी ये सिलसिला जो है लगातार जारी रहा और मुंतज़मीन की माने तो आज बालतल के रूट से, नुनवन बेस कैंप से और हमहमा हेलीपैड से जो है हज़ारों की तादाद में यात्री जो है लगातार दूसरे रोज़ जो है पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना हुए। देखिए, हम हरियाणा से आए हैं, 4 मेरे साथ फैमिली मेम्बर्स हैं। हम पहली ही फ़्लाइट से यहाँ से हमने बुक किया था स्लॉट 6 से 9 वाला, परंतु वो क्योंकि चॉपर्स की कमी थी तो वो पहली जो फ़्लाइट थी हमारी 2 बजे उड़ी वो। तो फिर हम यहाँ से नीलगिरस गए और नीलगिरस से तरनी के लिए तो हम थोड़ा लेट हो गए, क्योंकि ये पहला दिन था। आप ये भी कह सकते हो कि ये एक्सपेरिमेंट भी था, परंतु अगर इसमें थोड़ी सी मेहनत और कर ली जाए तो इट कैन बी ए गुड इवेंट। यात्रा हमारी बहुत अच्छी रही है, दर्शन हमें बहुत अच्छे हुए हैं और हम कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का और जो श्राइन बोर्ड है उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करते हैं कि वो इतना उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना अरेंजमेंट, उतना इन्होंने सब कुछ किया है। मेरी इस दौरान 3-4 बार बात हुई है श्री अनूप सोनी जो एडिशनल सीईओ हैं इसके, तो ही हेल्प्ड अस अ लॉट एंड वी कन्वे आवर ग्रेटिट्यूड एंड रिगार्ड्स टू हिम। तो आपकी यात्रा भी हो गई, अब आप वापस भी जा रहे हैं, तो क्या कुछ आप और चाहते हैं कि इससे बेटर होना चाहिए? अमरनाथ यात्रियों का इस्तकबाल है। यहाँ के लोग जो है, यहाँ के अवाम जो है, गुज़श्ता दहाइयों से जब से सालाना अमरनाथ यात्रा शेड्यूल के मुताबिक चलती रही, यहाँ के अवाम ने इसका दिल की उम्मीद गहराइयों से इस्तकबाल किया। लेकिन जम्मू कश्मीर में
सूरत हाल कौमी शाहरा की है। एक तरफ जहां अमरनाथ यात्रा की वजह से अब की बार पहलगाम और सोनमर्ग जाने वाले आम सयाहों को, डोमेस्टिक, नेशनल और इंटरनेशनल सयाहों को या पर्यटकों को बड़ी मुश्किल भरे माहौल से गुजरना पड़ता है और कहा जाता है कि हर नुक्कड़, हर चौराहे पर नए बंकर्स और मोबाइल बंकर्स के साथ साथ पुलिस, सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट जो है, मिनटों का सफ़र जो है घंटों में दाखिल होने लगा। आरिफ वहीद की तस्वीरें अब कौमी शहरा से आ रही है। कौमी शहरा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अमरनाथ यात्रा के बीचों बीच में कई एक अंजुमनों ने, तिजारती अंजुमन ने इल्ज़ाम आयद किया कि उन्हें अब कौमी शहरा पर दूध, फल, सब्जी, लाइव स्टॉक और बाकी चीज़ें जो बानिहाल से कश्मीर अमूमन आया करती थी, अमरनाथ यात्रा के शेड्यूल के हिसाब से और सिक्योरिटी हिसार की वजह से और रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ये चीज़ें ज़ाया हो रही है। कल ही महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके बताया था कि जम्मू कश्मीर में कौमी शहरा पर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अमरनाथ यात्री हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, लेकिन बाकी लोगों को भी इस तरह से जो रवां साल या गुज़श्ता साल जिस तरह से यात्रा भी चलते रहे, यात्री भी आते रहे और आम लोग भी इससे नुकसान से दो चार भी नहीं हो सके। इस बीच में हमारे नुमाइंदे आरिफ वहीद ने मकामी लोगों और तिजारत पेशा अफराद से उनकी आरा जाननी चाहिए, आखिर ये दूध क्यों ज़ाया हो रहा है और इस रिज़्क़ को इस तरह से ज़ाया होते आप बड़े ताज्जुब में पड़े होंगे। मामला क्या है? कौमी शहरा पर कुछ तिजारती अंजुमनें इल्ज़ाम आयद करती है कि डिप्लॉयमेंट अमरनाथ यात्रियों के लिए अपनी जगह और बेहतर भी है, ज़रूरत भी है, वक्त की पुकार भी है, लेकिन वो घराने जिनके चूल्हे इस दूध बेचने के बाद जला करते थे, अब इन्हें चूल्हे जलाने का तकरीबन साजो सामान ख़त्म हो गया है। मैं हाईवे से आ रहा हूँ दूध लेके। सुबह 7 बजे मैं टंडल पहुँचा हूँ। 7 बजे से अभी तक 12 बज गए। अब छोड़ा तब तक मेरा सारा दूध खराब हुआ है जी। मैं दूध पे गुजारा चलाता हूँ और मेरे पास कोई नौकरी है ना कुछ है, हम दूध बेच के अपना गुजारा चलाते हैं। मेरा इतना नुकसान होगा, ये कोई नहीं मानता है, कोई मटे नहीं लेता है। हम छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, शाम तक बैठना है इतनी। मैं गवर्नमेंट से ये बोलना चाहता हूँ, जो हम कारोबार वाले हैं, दूध वाले हैं, पनीर वाले हैं, इनको छोड़ दिया जाए जी। गाड़ी को देख के उसको छोड़ दिया जाए। इसमें क्या है क्या नहीं, हमारा दूध इतना नुकसान हो गया है। 50-60 के जी दूध बिल्कुल ख़राब हुआ है जी। उनको बोला हमें पीछे से आर्डर है, पीछे से आर्डर। ज़रा इब्लाग का काम है कि जम्मू कश्मीर में वो तस्वीरें भी दिखाएं जिन तस्वीरों से डिप्टी कमिश्नर, कंसर्न सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस और मुतल्लिका एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस मामला के हसासियत को जाने कि ये शख्स जो है ये बच्चों की कफ़ालत, वालिदैन की कफ़ालत के लिए अलग सुबह मजदूरी करने निकलते हैं, लेकिन उसके बाद जब ये चीज़ें ज़ाया हो जाएंगी, क्योंकि अशाई खुर्दनी लाइफ स्टॉक अगर आपको ज़्यादा देर तक हॉल्ट पे रहा तो उसके बाद ये कुदरती तौर पर ज़ाया करनी मजबूरी हो चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नौजवान तर्जमान इमरान नबी डार ने भी इस सारी सूरत हाल के हवाले से गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क को कहा कि बड़ी ताज्जुब की बात है कि जो डिप्लॉयमेंट का दायरा है और भी मामलात हैं जिन्हें पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए था। कल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें शायद केपी रोड अनंतनाग का एक वीडियो था और उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस एक नौजवान को रोक रही थी सड़क पे चलने से। उससे पहले भी एक और वीडियो आया था जिसमें केपी रोड पे जितने भी शॉप्स थे उन शॉप्स को बोला गया है या वर्बल ऑर्डर पेश किया गया है कि आप जी शॉप्स क्लोज़ करें। हमारा बस इतना कहना है कि ये जो यात्रा यहाँ पर हुई, ये पहली बार नहीं हो रही। ये पिछले 100 साल, तकरीबन 118 साल से ये यात्रा चल रही है और हमेशा कश्मीरी मुसलमान ने इस यात्रा को कामयाब करने में अपना जो है योगदान दिया, अपना रोल बड़ा ज़बरदस्त तरीके में निभाया। और इससे पहले जो सरकारें, जो डेमोक्रेटिक सरकारें भी थी, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी इस यात्रा को हर किसी तरीके से कामयाब करने की। और आम कश्मीरी मुसलमान ने आउट ऑफ वे, आपको याद होगा 2016 में कितने हालात ख़राब थे और उन हालात ख़राब होने के बावजूद भी जो है यात्रा खुशअस्लूबी से हुई, किसी टूरिस्ट को कहीं पे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन आज का सिलसिला हम कुछ नया देख रहे हैं। हम मानते हैं कि ये हुकूमत प्रोपेगेंडा करने में बड़ी। जम्मू कश्मीर में कुछ सियासी समाजी शख्सियात का मुस्तकबिल सियासत में या किसी दफ्तर में महफूज नज़र नहीं आता है। शेख इमरान ने जहां
तजारत की हैसियत से जम्मू कश्मीर में अच्छा खासा नाम बनाया, न जाने क्यों बाद में सियासत का रुख किया, और सियासत का रुख करने के बाद शेख इमरान बहुत कम वक्त में किसी उफक पर पहुंच गए। डिप्टी मेयर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन निशात वार्ड से इलेक्शन लड़ने के बाद कई एक तंजीमों के साथ आते रहे और चले भी गए। शेख इमरान ने बहुत सारा वक्त जो है कांग्रेस पार्टी के साथ गुजारा, उसके बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की, दोबारा वहां से निकल कर दोबारा पीपल्स कॉन्फ्रेंस शमूलियत इख्तियार की, और यहाँ यूथ प्रेसिडेंट के तौर पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने उन्हें नामजद किया, मुंतखब किया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने अब से कुछ देर पहले अपने ऑफिशियल प्रेस रिलीज में अब शेख इमरान से नाता तोड़ दिया, कहा शेख इमरान के साथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस का वास्ता नहीं है। हालांकि हमने कोशिश की थी शेख इमरान से राब्ता कायम करने की, उनका मौक़िफ़ जानने की, और उनके इस सियासी इनिंग में तब्दीली और बदलाव के बाद वो किस तरह से अपनी इस सियासी जंग को जारी रखेंगे। शेख इमरान जम्मू कश्मीर में जब 35 से 370 का खात्मा हुआ, काफ़ी वक्त तक डिटेंशन सेंटर में रहे। उससे पहले भी उन्हें एंटी करप्शन ब्यूरो और कई एक ऑर्गेनाइजेशंस ने मुख्तलिफ केसों के बाद काफ़ी वक्त उन्हें डिटेंशन सेंटर में भी गुजारना पड़ा। लेकिन बीते कुछ महीने से राहत मिली थी जब से पीपल्स कॉन्फ्रेंस में हुए थे, और उसके बाद आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस से बाहर आने के बाद शेख इमरान के लिए मुस्तकबिल किस तरफ जा रहा है, किस पार्टी की तरफ जा रहा है, ये बड़ी बात होगी। लेकिन अहम बात यह है, शेख इमरान ने कल ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ अपने सोशल मीडिया पोस्ट, फेसबुक पोस्ट में शेख साहब और डॉक्टर साहब, उमर साहब और बाकी तंजीमों के लीडरान के खिलाफ बड़ा ज़बरदस्त बोला था। सियासत में कहते हैं कोई हतमी दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। न जाने शेख इमरान को अगर कल पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्लेटफार्म से एनसी और बाकी पार्टी के लीडरान के खिलाफ नुक्ताचीनी करते पाया गया, और कल उसी दरवाजे पर अगर उसी जमात के साथ इसको दोबारा देखा गया। इसलिए कहते हैं जब आपको जोश हो तो उस वक्त थोड़ा होश रखना बड़ा लाजमी है। शेख इमरान की सियासी इनिंग मुख्तलिफ वादों से गुजरती रही। शेख इमरान एक इंतहाई अहम पढ़े लिखे घराने, इंतहाई अहम काबिलियत के मालिक और तिजारती पेशा अफराद ताल्लुक़ रखने वाले उस फैमिली से जहां उन्होंने शायद उनके वालिद ने उसे सियासत में जाने का हर वक्त मशवरा दिया था। शुमाली कश्मीर के ज़िला बांडीपोरा को इल्म अदब का गहवारा कहा जाता है, लेकिन झील बुलर के आसपास में पानी की लहरों ने आज मकामी 3 अफराद को डुबो दिया। बताया जाता है कि मुजफ्फर अहमद और उसके 2 साथी जो थे झील बुलर से पहले जो मकामी वहाँ पे नदी नाले हैं, जानवरों को लेकर, मवेशियों को लेकर आगे चल रहे थे कि अचानक डूबने की इत्तला आई। मकामी लोगों की बड़ी तादाद लहरवापोरा बांडीपोरा में जमा हुई, और इस मौके पर मुजफ्फर को बचाया नहीं जा सका, वो अब्दी नींद सो गया, लेकिन 2 अफराद को बचाने में कामयाब हुए। मकामी लोगों ने आज खुद इस ऑपरेशन में पुलिस इंतजामिया के साथ हिस्सा लिया। मकामी लोगों ने इस मौके पर जो ही मुजफ्फर अहमद की लाश पानी से बाहर लाई जा रही थी, पुलिस के सीनियर अफसर आज खुद ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। बांडीपोरा के एसएसपी, एसपी और डीवाईएसपी, एसएचओ कंसर भी मौजूद थे। जो ही मुजफ्फर की लाश उनके आबाई घर पहुंची, वहाँ कोहरा मच गया। ख़वातीन सीना को भी करती नजर आई। ये गरीब ने सुबह रोजी रोटी के लिए बुलर झील का रुख किया था। माल मवेशी को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने के लिए आबी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल अमूमन इलाकों में लोग करते हैं, लेकिन आज मुजफ्फर के घर पर ईद उल अजहा से पहले इस तरह की परेशानी से गुजरना पड़े। मकामी लोगों ने डिप्टी कमिश्नर से खुसूसन फौरी तौर पर कंपनसेशन की अपील की है, ताकि इस गरीब घर की किसी न किसी वजह से मुजफ्फर को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन माली तौर पर मदद करना बड़ी अहम तरीन चीज़ है। नाज़रीन, डॉक्टर्स डे के सिलसिले में आज श्रीनगर के एसएमएच अस्पताल में मुतल्लिका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सामिया रशीद के अलावा एसएमएचएस के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर कमलजीत, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट और सीएमओ तारिक अहमद की मौजूदगी में डॉक्टर्स डे के मौके पर एजाज़ात और इकरामात और केक काट कर इस रस्म का आगाज़ किया गया, ताकि मेडिकल कॉलेज श्रीनगर जो कि वाहिद मेडिकल कॉलेज है अभी तक, क्योंकि अजला में भी शुरू हुए, और आज के मौके पर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने मेडिकल यूनिवर्सिटी का भी मुतालबा किया। 12 तस्वीरों में आप देख पाएंगे। इससे कबल कई एक जगहों पर, जिनमें सीडी हॉस्पिटल श्रीनगर और इसके अलावा किश्तवाड़ बद्रा में फ़ौज की तरफ से डॉक्टर्स डे मनाया गया,
लेकिन डॉक्टर्स डे के मौके पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज न सही बल्कि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आज 16 डॉक्टरों को दोबारा नोटिस जारी किए। अगर वो दोबारा जिन्हें गैर हाजिर पाया गया नौकरी पे वापस आ जाते हैं तो उन्हें माफ किया जाएगा, वरना उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। 14 राष्ट्रीय राइफल्स की तरफ से किश्तवाड़ में भी एक तकरीब, भद्रवाह में भी तकरीबात का सिलसिला जारी रहा और डॉक्टरों को उनके नुमाया कारकर्दगी पर इनामात इकरामात से नवाजा गया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आलमी यौमी डॉक्टर्स के मौके पर डॉक्टरों को मुबारकबाद पेश की है। एलजी मनोज सिन्हा ने इस मुनफरिद पेशे के जरिए इंसानियत की बेलोस खिदमत करने और हजारों जिंदगियों को बदलने वाले मर्द व जन का शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन, आज भी एहतजाज सिलसिला जारी रहा। ऑटो रिक्शा एसोसिएशन ने एहतजाज किया, वहीं सेंटूर होटल के मुलाजमीन सरापा एहतजाज है। तो नाज़रीन, इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा और ये बैठक इस हफ्ते की मुकम्मल हुआ चाहती है। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।